the Department of Political Science and Gandhi Study Circle in association with IQSC are organizing a webinar, a one-day webinar on Mahatma Gandhi and the nationalist movement, relevance for resurgent India. We are very happy to welcome you all in this webinar, and this event becomes more important, more decorated as we have esteemed guests. Professor Vidyut Chakraborty is presently a Vice Chancellor in Visva-Bharati University, that's in Dholpur, Bengal. We also have amongst us our mentor and guide, who has always encouraged us at each and every stage in every endeavor in the college and outside. Our principal, Dr. Ravi Narayan Kar sir. We also have amongst us Kusha Tiwari ma'am, Professor Kusha Tiwari ma'am, convener of IQSC. We have Dr. Sitaram Kumbhar sir, teacher in charge, Department of Political Science. Neena ma'am, convener of Gandhi Study Circle. Let me take this privilege to introduce our chief guest and who also happens to be the speaker, Professor Vidyut Chakraborty sir. मैं एक रिक्वेस्ट करूं, सुनो ज्यादा लंबा बात ना करे, मेरे को इंट्रोड्यूस करो एज अ टीचर, दैट्स इट. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ टीचर, और कुछ मत करो, ठीक है रवि? ये मेरा गुजारिश है आपसे, यही सबसे बड़ा परिचय है भाई टीचर के लिए, और क्या चाहिए सर? मेरा सीवी मत कर पढ़ो. सर दो शब्द बोलने दीजिए आप विद आपका ड्यू परमिशन, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, वो इंस्पिरेशन देखते हैं तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है सर, और कुछ नहीं है. हम सारे जानते हैं आप एक डेडिकेटेड टीचर है सर, हम सभी का भी टीचर है, आप मेंटर है, आपसे बढ़िया कौन हो सकता है. और मैं तो ये कहता हूँ कि सीताराम जी वगैरह अगर डांट भी नहीं खाए सर का तो और अच्छा आपका कहते हैं रिसर्च और टीचिंग और बढ़िया हो सकता है. नहीं ठीक है, चलो विवेकानंद, चलो प्रिंसिपल का ऑर्डर आदेश मैं कैसे अमान्य करूं, कैसे इनकार करूं भाई? Thank you sir. Professor Chakraborty has been a former professor in political science, Department of Political Science, University of Delhi, before assuming the charge of Vice Chancellor at Visva-Bharati. He has obtained his PhD from London School of Economics and Political Science. Professor Chakraborty is a prolific writer with many books published by globally reputed publishers. He is an authority in public administration. He is widely cited for his original contributions to Gandhi's social and political thought. His book on the ideas of Gandhi and Martin Luther King Jr. is also widely appreciated text. His book on coalition politics has received accolades for its distinctive approach to the phenomenon. He has a large number of articles published in different academic journals with high impact factor. He was also a nominee of the President of India for JNU Executive Council from the year 2015 to 2017. He is also a member of the Board of Studies at Navakrishna Chaudhary Institute, Utkal University, Bhubaneswar. An acclaimed academic, Professor Chakraborty also held various academic assignments like visiting professor in various renowned universities across the globe, besides having brief stints as a visiting professor in UK, Australia, and Singapore. He was the first occupant of the Mahatma Gandhi Chair for Global Nonviolence at James Madison University in Virginia, United States. Recently, he was also appointed as the DAAD professor in Germany, housed in University of Hamburg. So we are very privileged to have you and to guide us on this occasion, sir. We also have amongst us Professor Kar sir, our principal. He has been our mentor guide, and apart from being a blessed administrator, he is also an acclaimed academician. He has obtained time sir ka kinti hai. You can go ahead. Just Thank you, sir. Thank you for giving us time and encouraging us. We also have Dr. Kusha Tiwari ma'am. We, on behalf of our department, extend our heartiest congratulations
on her appointment as a professor. It's a huge inspiration to all of us. Thank you, ma'am. Now, may I invite Professor Abhinarayan Kar sir to welcome our guest and say a few words about our webinar. Professor Abhinarayan Kar sir. Thank you, Vivek. Thank you, Vivek. At the outset, I won't take much time, but we are, sir, delighted and privileged to have with us, as Vivek, Dr. Vivek said, it's our honor and privilege to extend a very warm welcome to Professor Vidyut Chakraborty. And as you have been reading out sir's bio note, short bio rather, where he has been, but he has been a chair professor of Mahatma Gandhi in Madison University. And who could have been do justice other than Professor Vidyut Chakraborty to this seminar? So we are, sir, blessed and happy to welcome you all. And you could see that almost 80 people have already joined, and they are all eagerly awaiting to listen to you, sir. We have been tried very hard to have you with us before 15, but that didn't work out. But we have, sir, under this Azadi Ki Amrit Mahotsav, sir, we have lined up a lot of activities throughout the year. We have started in 12th of March this year, and we have been continuing. Sir, we would seek your guidance, and we would have many more meaningful, bigger occasions where you can deliberate with us, sir. And we are very hopeful of also physically opening, when we also want to have with us physically here and addressing our students. I want the best for my students, and sir, nobody else could be better fitted than you in that role also as a teacher, I should very aptly, where my students will have some interaction and they would like to have some question answer sessions with you. With this short note, sir, the seminar itself that is showing towards the way we have been progressing as a nation. Now people are calling it a new India. So that's why we have put it as a resurgent India. Still those Gandhian values and their dimensions have changed. The challenges are also changed, and recently what happened in Afghanistan, that is also an eye-opener. So all those geopolitical challenges and how the Gandhian things are fitting into that, the nationalist movement, still it is very, very relevant, which all of us know in our core of our hearts. But you are the best person, sir, to relate and further enlighten us. Once again, I welcome all the participants, also my colleagues and teachers from different institutions, and my students, of course. So with this short words, once again from Samlal family, I am extending a very warm welcome to sir. Thank you, sir, for joining. Now, Yes, चलो क्या भाई now बोल के रुक क्यों गए? Yes, sir. Now may I take privilege to invite Professor Chakraborty to address us. Professor Chakraborty. Okay, नमस्कार. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस जबान से मैं बात करूँ, ये अंग्रेजी या हिंदी, ये बताओ सर। बोथ क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, यहाँ जब जैसे आपका प्रिंसिपल साहब बताया, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये लोग का अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, बट शायद हिंदी में बात करने से ये लोगों के पास हम ज्यादा पहुंच पाएंगे। जो मेरा हिंदी आप जानते हैं उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इसीलिए दिल्ली में जो चलता है इंग्लिश में मैं बात करूंगा, जहां जहां जरूरत पड़े तो पे थोड़ा इंग्लिश बोल लूंगा, जहां जरूरत पड़े तो वहां हिंदी में बात कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए। देखिए, जो टॉपिक आपने चुना, ये टॉपिक मेरे हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट आज के दिन। ये काबुल का बात किया आपका प्रिंसिपल साहब, और हिंदुस्तान में तो चल ही रहा है इस तरह लड़ाई झगड़ा हर दिन चल रहा है। और मैं ऐसा एक जगह में हूँ जहाँ पे हर दिन लोगों का मर्डर वगैरह ये कोई खबर नहीं है, और लोग कहते हैं यहाँ पे बॉम्ब बनाने के लिए सबको ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बन गया, कॉटेज इंडस्ट्री बन गया यहाँ पे बॉम्ब बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमें लगता है गांधीवादी समझना, गांधी का जो वैल्यूज है समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जो कोशिश करूंगा, गांधीवादी का जो गांधीयन थॉट और गांधीयन आइडियाज जिसको कहते हैं, इसको मतलब क्या है। आज का गांधी जी तो चले गए, बहुत साल हो गए,
1948 में, तो उसके बाद कई रेजिम चले गए, फिर भी आज 2021 में हम लोग गांधी जी के बारे में क्यों याद कर रहा हूँ? ऐसा क्या था उस इंसान में जो आज भी हम लोग को सोच में रखते हैं, सोच मेरे को नया सोच देते हैं, जिसको लगता है कि इंसानियत का बचाने के शायद एक ही रास्ता बचा हुआ, कि गांधी का जो आइडियाज है, that appears to be the only solution to the survival of humanity. इसलिए मेरे हिसाब से गांधीज्म और गांधीयन आइडियाज एंड इंसानियत अर्थात ह्यूमैनिटी, ये दोनों का जो रिलेशनशिप, ये दोनों का रिलेशनशिप है डायलेक्टिकल। अगर इंसानियत बचे तो गांधी जी बचेंगे, अगर गांधी जी बचे तो इंसानियत बचेंगे। यही मेरा बेसिक हाइपोथेसिस है। इसका बोलने के लिए मैं थोड़ा एक दो उर्दू शायर का मदद लूंगा, तो दो चार शेर आपको सुनाऊंगा, जिसमें मेरा जो आर्गुमेंट है, जो मेरा वक्तव्य है, वक्तव्य को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए क्यों जरूरत है गांधी जी। इसमें कोई कवि ने लिखा, मेरे याद नहीं कौन सा कवि, बट जो पंक्तियां लिखी थी वो पंक्तियां बहुत एप्रोप्रिएट है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये राम का धरती है, ये राम का धरती है, मर्यादा कहाँ? ये कृष्ण का माटी है, प्रेम कहाँ? ये बुद्ध का तपोवन है, शांति कहाँ? सब परिवर्तन हो गए युग परिवर्तन के साथ, इससे कब छुटकारा मिलेगा? तो ऐसा एक हिंदुस्तान में पहुंचा, ऐसा एक दुनिया में हम लोग पहुंचा जहां पे मर्यादा नहीं है, जहां पे प्रेम नहीं है, जहां पे शांति नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से गांधी समझना, गांधी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं शुरू करता हूं बहुत सिंपल सा बात लेके। मेरे हिसाब से मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी उसका सरनेम है। मेरे हिसाब से गांधी सरनेम नहीं है। गांधी इज नथिंग बट एन एक्रोनिम of certain qualities which Gandhi epitomized through his life. कहते थे ना, my life is my message. तो गांधी जी जितना दिन तक काम किया, जितना दिन तक जिंदा था, तो हिस्टोरिकल गांधी था। ये हिस्टोरिकल गांधी क्या रिप्रेजेंट किया? जिसके लिए वो सिविलाइजेशनल गांधी बन गया, जिसके लिए वो ट्रांसेंडेंटल गांधी बन गया। बिकॉज गांधी हिंदुस्तान में जन्म लिया, लेकिन मार्टिन लूथर किंग वहां से इंस्पायर्ड हो गए, नेल्सन मैंडेला साहब इंस्पायर्ड हो गए। अभी आपने देखा जो अरब स्प्रिंग हुआ, वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड वो भी इंस्पायर्ड हो गए। तो गांधी इज ट्रांसेंडेंटल। अच्छा, 1948 में चले गए, फिर भी देखिए गांधी आज भी रेलिवेंट है, आज भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गांधी इज नॉट merely a historical figure. गांधी इज ए ट्रांसेंडेंटल फिगर, बा यू कैन से सिविलाइजेशनल फिगर। ये पूरा सिविलाइजेशन का, एक सभ्यता का एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है गांधी जी, जो गांधी जी का बातों में, गांधी जी का सोच में हमारा पास अभी तक ये ट्रांसफर होते जा रहा है। तो मैंने कहा इट्स एन एब्रिविएशन। गांधी इज एन एक्रोनिम consisting of certain qualities. जैसे देखो जी मेरे हिसाब से stands for gentle, सज्जन। He was a सज्जन, he was a gentleman, thorough gentleman. A means accommodative. Gandhi was the only person in Indian politics who could talk freely to Jinnah, who could talk freely to B.R. Ambedkar, who could talk freely to Nehruji and others. So the fact of being accommodative allows Gandhiji to be able to talk to people with different kind of ideological perceptions. आपको पता है कि हिंदुस्तान में 3 लोग थे जो गांधी जी को गांधी जी बापू जी नहीं कहते थे। ये तीनों लोग की गांधी जी के खिलाफ था। एक तो B.R. Ambedkar, he never said गांधी जी और बापू, he said Mr. Gandhi. Jinnah Sahab, he always
addressed Gandhiji as Mr. Gandhi, and the third person happens to be V.D. Savarkar. He never addressed him as Bapu or Gandhiji, always Mr. Gandhi. So तीनों लोग different ideological background का है. Yet Gandhiji had interacted with Savarkar and he wrote Hind Swaraj. Gandhiji interacted with Jinnah and he, had many exchanges between Jinnah and himself. Gandhiji talked to Ambedkar, famous Pune Bhuk Hartal, Pune hunger strike. Yet he talked to Ambedkar and he resolved that issue amicably. तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया just to establish my point that Gandhiji was accommodative, जो आजकल नहीं होता है. थर्ड जो है N, GAN, N मतलब negotiate. He was, always willing to negotiate with others. He was the one who was constantly negotiating with the British. कभी ये नहीं कहा उन लोगों को कि हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे. Gandhiji was the person who always believed in dialogue. So Gandhiji believed in a dialogical interaction. कह रहे अगर बात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. जितना बात करोगे उतने में आप दूसरा बंदा का दिमाग में क्या चल रहा है वो निकल आएगा. जब निकल आएगा तब पता चलेगा आपका साथ उसका कोई तालमेल है कि नहीं. So Gandhiji was constantly in the form of negotiating, even with his enemies, even with his adversaries, even with his foes. इसलिए अंबेडकर, जिन्ना, सावरकर से सब continuously बात किया गांधी जी. इसलिए मैं सोचता हूँ गांधी जी के N stands for a person with the capability of negotiating. मैं कहता हूँ negotiated. Then D, diligent. इतना हार्ड वर्क करते थे पूछिए मत. गांधी जी का बारे में जिन लोग को जानते हैं, गांधी जी दिन में कभी सोते नहीं, रात में 4 घंटा सोते थे. जब तक उनका तबीयत ठीक चलता था तब तक अपना कपड़ा हर दिन 4 o'clock in the morning उठ के कपड़ा धोते थे. मैं आपको छोटा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. नारायण देसाई ने कहा, नारायण देसाई happens to be Mahadev Desai's son and Mahadev Desai happens to be Gandhiji's private secretary till his death in 1942. तो सेवाग्राम में जब गांधी जी रहते थे, नारायण देसाई बच्चा था. सेवाग्राम में 2 चीज बहुत मशहूर है. एक है पूरा नागपुर में आपको पता है गर्मी बहुत होता है, और दूसरा गर्मी का साथ साथ मच्छर भी होता है बहुत. तो नारायण देसाई लिख रहे हैं कि मैं छोटा था, मैं देखता था बापू को बाहर एक चारपाई रखते थे, अंदर एक चारपाई रखते थे, और जब सोते थे हर दिन रात में वो मिट्टी का तेल लगा के सोते थे. क्योंकि मिट्टी का तेल क्यों लगाते थे? क्योंकि मिट्टी का तेल से मच्छर नहीं काटेगा, और अंदर गर्मी था इसलिए बाहर सोते थे. कह रहे कभी कभी बारिश आ जाता था, मैं देखता था पूरा रात भर बापू ऐसा ही करते थे. जब भी बारिश चला गया तो वो बाहर आके सो गया, जब बारिश आया तब फिर नीचे चला गया, अंदर चला गया. तो और मिट्टी का तेल हर दिन लगाते थे. फिर भी 4 बजे उसका जो उपासना होता था, प्रेयर, दैट टाइम ही वाज पंक्चुअल एंड ही केम एज फ्रेश एज समवन विथ फुल स्लीप. तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उसका अंदर जिन में ऐसा कुछ था जिसमें वो इतना हार्ड वर्क करते थे जिसके लिए उसके कभी दिमाग कभी टायर्ड नहीं हो जाता. He was always active. आप सोचो गांधी जी का 100 वॉल्यूम निकल चुका. 100 वॉल्यूम में कम से कम 800 पन्ना है एक वॉल्यूम में. एक पन्ना में कम से कम 400 वर्ड है. अभी रवि आप इकोनॉमिक्स का है, आप कैलकुलेट करो कितना लिखा. उस दौरान कंप्यूटर नहीं था, एंड गांधी जी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड टू राइट इन लॉन्ग हैंड्स. महादेव देसाई था उसका सेक्रेटरी, बट वो खुद ही लिखते थे. तो उसका मतलब देखो एक इंसान कितना हार्ड वर्क करते थे, जिसका बावजूद भी उस टाइम घूमते थे बहुत. घूमने के लिए क्या फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? रेलवे. वो पैदल जाते थे,
बैलगाड़ी में भी जाते थे। इसका करने के बावजूद भी इतना लिखा, अगर आपको कहा जाए विवेकानंद भाई आज से आप कॉपी करना शुरू करो गांधी जी कलेक्टेड वर्क्स, पूरा जीवन में नहीं कर पाओगे। तो ये आर्गुमेंट में ये सब बताने का एक ही उद्देश्य है मेरा, कि देखो गांधी जी कितना हार्ड वर्क करते थे, डिलीजेंट। सो डी स्टैंड्स फॉर डिलीजेंट, एच हम्बल, हम्बल ना। गांधी जी का हम्बलनेस के बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा एंजॉय करेंगे। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जस्ट खत्म हो गया, तब गांधी जी से मिलना चाहते थे लॉर्ड रेडिंग, उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल मतलब आज का जो राष्ट्रपति भवन है, वहीं पे गवर्नर जनरल का मकान हुआ करता था। तो गांधी जी को टाइम दिया, गांधी तो उसी ड्रेस पे आ गए राष्ट्रपति मतलब गवर्नर जनरल के मकान में। चौकीदार ने रोका, आजकल सिक्योरिटी होता तो गांधी जी को अंदर जाने ही नहीं देते। चौकीदार को बोला भाई आप कौन हो? कह रहे मेरे साथ लाट साहब का साथ अपॉइंटमेंट है, मेरा नाम है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जाने दिया। करते करते रोक के फाइनली गांधी जी जब चौकीदार के पास पहुंचे, दरवाजे से बाहर, तो चौकीदार के पास पहुंचा, चौकीदार का जो कुर्सी थक गए, चौकीदार का कुर्सी पे बैठ गया गांधी जी थोड़ा थकान के बजाय। चौकीदार आके इतना गुस्सा किया, भाई आपको पता नहीं है मैं लाट साहब का चौकीदार हूं और आप मेरा कुर्सी पे बैठेगा, कौन हो? कह रहा भाई मैं एम के गांधी हूं, मेरे साथ लाट साहब का अपॉइंटमेंट है। तब चौकीदार का थोड़ा सा ख्याल है, जरूर बंदा कोई बड़ा का बंदा होगा, नहीं तो गवर्नर जनरल टाइम दे रहा है। तो इसके बाद अंदर गए, बात किया, उसके बाद चौकीदार उसको पैर पकड़ लिया। कह रहे साहब आप तो बताओगे कि आप गांधी जी हो? कह रहे भाई मैं क्या बताऊं, आप मुझे मालूम है आप पूरा दिन भर ड्यूटी देते हैं, आपको कुर्सी में बैठना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बुढ़ापा हो गया इसलिए थकान के वजह मैं बैठ गया। तो उसका मतलब देखो, चौकीदार का पास भी गांधी जी उस टाइम 1920 में गांधी जी बन गया। फिर भी गांधी जी इतना हम्बल था जो चौकीदार को अप्रिशिएट किया कि आपको बैठना चाहिए था, मैंने बैठ के गलती किया, फिर भी आपने मेरे को उतना डांटा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? he was very humble, he was very humble and I inquisitiveness। गांधी जी में बहुत he wanted to know more, he was always in search for knowledge। जैसे देखो गांधी जी का कोई भी किताब पढ़ो, जैसे आप की टू हेल्थ पढ़ो, गांधी जी 2 किताब लिखा, फुल फ्लेजेड किताब, और 2 बुकलेट लिखा। 2 किताब क्या है? सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और 2 बुकलेट क्या है? एक है हिंद स्वराज 1909 और की टू हेल्थ। की टू हेल्थ एक किताब के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन की टू हेल्थ में इज बेस्ड ऑन गांधी जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा as a curable phenomenon, curable design for curing diseases। अर्थात इंसान में जो डिजीज होता है, ये डिजीज को कैसे क्योर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदिक प्रेस्क्रिप्शन, ये की टू हेल्थ में है। तो उसका मतलब गांधी जी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में पता था, उसमें अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये जो पॉलिटिशियन, मेरे हिसाब से गांधी जी बाबा नहीं थे, गांधी जी भगवान नहीं थे, गांधी जी थे इंसान, हम आप जैसा, लेकिन एन इंसान with extraordinary qualities, an ordinary Indian like us, mortal Indian like us, लेकिन with extraordinary quality। इसीलिए आज 2021 अगस्त में भी हम लोग गांधी जी के बारे में सोच रहा हूं। तो ये जो मैंने बताया एब्रिविएशन का बात, ये एब्रिविएशन का बात मैंने इसीलिए कहा ये आम जनता के लिए बताया, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट जब आपका प्रिंसिपल साहब ने बोला तो अब आपने इतना तारीफ किया, तो थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्लेक्स तो बनाना पड़ेगा अभी मेरा भाषण को। अभी तक तो मैंने भाषण को काफी मतलब सिंपल सा किया, अभी आपको मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूं। देखिए मेरे हिसाब से जो मैंने फाउंडेशन बनाया था, ये फाउंडेशन सिंपल हो सकता है,
but a foundation to me is a stepping stone towards understanding Gandhiji in its most complex manifestation. ये जो फाउंडेशन मैंने अभी बनाया एब्रिविएशन से, गांधी इज एन एक्रोनिम. This acronym to me helps us to understand Gandhi in its most complex formation, in its most complex manifestation. ये मैंने कैसे करूंगी, ये मैं आर्गुमेंट आपको बता रहा हूं. अभी मैंने गांधी जी को एज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, एज ए कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट ऑफ आइडियल्स, मैं ये अभी करना चाहता हूं. ये करने के लिए मैं स्टोरी का थ्रू करूंगा, क्योंकि ये पे बच्चा है, बच्चे को अच्छा लगेगा. तो बच्चे को पूरा ऐसा ही बताए तो दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड, तो मैं स्टोरी का साथ साथ बनाऊंगा. देखिए, फर्स्ट गांधी जी, दैट गांधी जी वाज लाइकली टू बिकम गांधी जी, ये पता चला कब? ये पता चला 1893-94, जब गांधी जी when he was going to from Durban to Pretoria and he was traveling by train. ये आप लोगों को सबको पता है, ये ट्रेन जर्नी. ये ट्रेन जर्नी तो मेरे हिसाब से गांधी जी को समझने के लिए एक फर्स्ट सीढ़ी, फर्स्ट स्टेयरकेस. ये ट्रेन जर्नी जब मैरिट्सबर्ग पहुंचा ट्रेन, तब गांधी जी फर्स्ट क्लास में टिकट था, बट स्किन का कलर ब्राउन था, इसीलिए फिरंगी के साथ ट्रेवल करने नहीं देंगे. तो ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर, टिकट कॉन्ट्रैक्टर आके गांधी जी को कहा, भाई आप यहाँ से भाग जाओ. गांधी जी को, भाई क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टिकट है, वैलिड टिकट है, मैं क्यों भागू? कह रहे नहीं, यहाँ पे तो फिरंगी साहब जाएंगे, ये हम काला लोगों को घुसने नहीं देंगे. और हिंदुस्तानी को उस टाइम साउथ अफ्रीका में कहते थे कुली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेंट टू साउथ अफ्रीका टू एक्ट एज कुली इन द डॉक्स. तो अगर आप लॉयर भी हो, आप टीचर भी हो, बट यू नोन एज कुली, तो कंडक्टर कहा ये कुली के लिए बैठने की जगह नहीं है. तो कहते क्या बात कर रहे हैं, मैं कुली थोड़ी हूं, मैं ब्रिटेन से डॉक्टरेट बारह करके आया. इसके मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कितना ब्रिलियंट माइंड था गांधी जी का. गांधी जी गुजरात में पढ़ाई किया, काठियार में, और लैंग्वेज किया था गुजरात. एंड गांधी जी left for England at the age of 19 to do Bharat law, and Gandhi ji finished his Bharat law at the age of 23. देखो, एक बंदा जो कभी अंग्रेजी पढ़ा नहीं, जो 19 तक गुजराती में सब कुछ पढ़ा, वह इंग्लैंड गए, अंग्रेजी ऐसा सीखा that he passed Bharat law in 4 years time. मैं आपको कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं. नेहरू साहब हैरो ईटन में पास किया, पूरा फिरंगी. हैरो ईटन से स्कूल ओ लेवल करने के बाद, मतलब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी करने के बाद ही वेंट टू कैम्ब्रिज. ग्रेजुएशन किया, ट्राइपॉस किया, उसके बाद भारत लॉ दिया. नेहरू पास एट द एज ऑफ 28, जो पूरा अंग्रेजी में पढ़ा. अच्छा, Patel, another person, he is also brilliant mind. Patel passed Bharat law at the age of 38. To see the brilliance of the gentleman Gandhi, he passed in 1920 at the age of 23, and he did not know English, even E, before he left for England at the age of 19. Okay. So Gandhi ji, South Africa, Maritzburg incident is very important. मारिसबर्ग इंसिडेंट में जब गांधी जी को फेंक दिया गया ट्रेन से, तब गांधी जी पूरा रात भर, ये ऑटोबायोग्राफी में पेज नंबर 23 में है, आप देख लेना, रात भर गांधी जी प्लेटफॉर्म में बैठा रहा. इतना ठंड था, दिसंबर महीना, ठंड में बैठा रहा. बैठने के बाद गांधी जी सोच रहे थे क्या करना चाहिए. भाई बॉम्बे वापस जाए, मेरे पास भारत लॉ डिग्री है, कुछ तो ब्रीफ मिल ही जाएगा, गुजरात चली जाएगा, तो व्हाई शुड आई सफर हियर. और दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, जे लेट मी स्टे हियर एंड फाइट अगेंस्ट रेसिज्म. जब सुबह हुआ
तब गांधी जी का दिमाग में ये घुस गया that I would like to stay here and I'd like to fight against racism. So Maritzburg का जो incident to me is again a landmark incident in Gandhi's life. अगर वो नहीं होता शायद गांधी जी would have come back after fighting the battle for the Gujarati businessman in South Africa. तो गांधी जी ये तो निर्णय ले लिया भाई यहाँ पे रह के लड़ाई करना पड़ेगा अगेंस्ट रेसिज्म। लड़ाई में मैं काफी लंबा है वो मैं इतना नहीं जाऊंगा, इसके बारे में सबको पता है, आप सत्याग्रह साउथ अफ्रीका पढ़ लो आपको पता। मैं दो इंसिडेंट का बात करूंगा। एक इंसिडेंट था गांधी जी आके देखा जे वी आर ऑल ब्रिटिश सिटीजन, ये जब वोटिंग राइट्स होता है तब वी हैड टू पे 25 पाउंड्स। ये क्या बात है? बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जस्ट लाइक साउथ अफ्रीकन्स, तो व्हाई शुड देयर बी अ डिस्क्रिमिनेशन? इसको कहते हैं फ्रेंचाइज राइट्स। फ्रेंचाइज राइट्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को आपको 25 पाउंड देना पड़ेगा, आपको नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। गांधी से ये डिस्क्रिमिनेटरी, ये कैसे भाई? वी आर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अगर एक व्हाइट बंदा को आप अलाउ कर रहे हैं टू कास्ट वोट विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो व्हाई आर यू फोर्सिंग दिस ऑन अस? वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वी आर ब्रिटिश सिटीजन्स। तो गांधी जी स्टार्टेड फाइटिंग, स्टार्टेड मोबिलाइजिंग, सत्याग्रह कोर्ट में अपील किया, प्रिवी पर्स में अपील किया, and then the amount was reduced to 3 pound. So Gandhi ji realized that through non-violence, I mean non-violence हुआ नहीं, but at least protest not in terms of violent mode, but in terms of writing petition, that can be effective, and that also help Gandhi ji to obtain his objective. 3 और दूसरा एक काम किया गांधी जी ने, उस टाइम शादी होने के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी था साउथ अफ्रीका में, पर हिंदुस्तान में आज भी शादी होता है बिना रजिस्ट्रेशन। तो गांधी जी का बीबी था गांधी के साथ, तो गांधी जी पहुंचने के बाद कह रहे हैं सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हिंदू लोग कह रहे हैं भाई हमने अग्नि को सामने रख के शादी किया, अग्नि परीक्षा दे के हमने शादी किया, तो उसके बाद हमने कोई अनजाने इंसान को बीबी ऐसा बीबी मान लिया, तो हम why should I go for registration? This is humiliation to me as an individual. This is humiliation to my identity as an individual. So Gandhi ji again started sitting in dharna before the magistrate, wrote many petitions, fought in the court, and a court में एक interesting incident हुआ। कोर्ट में गांधी जी used to go in turban, तो जज ने कहा भाई आपको टर्बन में हम अंदर आने नहीं देंगे। गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम मान लिया बात, टर्बन बाहर रख के अंदर चले गए, तो करके आर्ग्यू किया, एंड देन ही फाइनली वॉन कि भाई नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान में शादी हुआ तो ये शादी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज मैरिज इन साउथ अफ्रीका। तब गांधी जी पूछा कि आपने इतना फाइट करते हैं ब्रिटिश लोगों से, आपका हिंदुस्तानी होने के नाते जो टर्बन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर अटायर, वो आपने छोड़ के चला गया, ये कैसे हुआ? तो गांधी जी का देखिए, आई लेफ्ट टर्बन फॉर विनिंग अ बिगर कॉज, तो बिगर कॉज के लिए वो टर्बन छोड़ दिया। तो गांधी वाज वेरी स्ट्रेटेजिक, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ही वाज वेरी स्ट्रेटेजिक, ठीक है। इसका बाद जब गांधी जी वापस आ रहा है तब उस टाइम गांधी के सबसे ज्यादा पंगा हुआ था उसका साउथ अफ्रीकन का जो क्वीन अपॉइंटेड गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जॉन स्मार्ट्स, उसका आपने सुना जरूर, ऑक्सफोर्ड में मार्गरेट हॉल में उसका वो पैसा दिया था, वो ऑक्सफोर्ड वो कॉलेज बनाया, उसके कॉलेज के सामने उसका स्टैचू है, वो स्टैचू तोड़ दिया अभी आपको कई दिन में लगता है महीना पहले उसका स्टैचू तोड़ दिया, बिकॉज ही अर्न मनी बाय सेंडिंग ब्लैक अफ्रीकन्स टू अमेरिका एज स्लेव्स। तो इसीलिए बट ही वाज आल्सो गवर्नर जनरल, मतलब इसी तरह से। बट जब स्मार्ट साहब, जब गांधी जी को कई बार
जेल में डाला। सबसे मतलब ज्यादा तंग किया गांधी जी को यान स्मार्ट्स। तो जब गांधी जी वापस आ रहा है, कह रहे 1914 में गांधी जी इज कमिंग बैक टू इंडिया। 1893 में गए, 1914 में ही इज कमिंग बैक। सो 21 years he was in साउथ अफ्रीका। तो स्मार्ट्स ने जब मतलब हिंदुस्तान आने से पहले गांधी जी कहा, भाई स्मार्ट साहब को मैं मिलना चाहता हूँ। उस टाइम उतना सिक्योरिटी नहीं था, प्लस महात्मा गांधी महात्मा नहीं हुआ, महात्मा बाद में होंगे। गांधी जी वाज प्रीटी वेल नोन, तो स्मार्ट साहब उसको अपॉइंटमेंट दे दिया। तो देने के बाद गांधी जी का एक छोटा सा बैग टाइप था, उसमें उसका अंदर कुछ था। तो जब अंदर पहुंचे स्मार्ट साहब के पास, वो अंदर से वो पैकेट खोल के कह रहे, साहब आपका साथ तो मेरा बहुत गहरा संबंध है, तो आपके लिए मैं एक गिफ्ट ले आया, ये गिफ्ट आपको कबूल करना पड़ेगा। तो गिफ्ट क्या था? एक मैंने पेयर ऑफ चप्पल, पेयर ऑफ चप्पल। तो चप्पल जब दिया तो स्मार्ट से पूछा, भाई ये क्या बात है? कह रहे, साहब जब आपने मेरे को जेल पे रखा, आई वॉज इन रिगरस इम्प्रिजनर। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसको होता है उसका काम करना पड़ता, तो मैंने आपके लिए ये 2 जूता सिलवाया, मैंने खुद सिलाई किया। ये 2 जो चप्पल, ये चप्पल मैंने आपको देना चाहता हूं। तो स्मार्ट्स भी काफी इंटेलिजेंट बंदा था भाई, गवर्नर जनरल उस जमाने में। कह रहे भाई MK मोहनदास, आपने तो ये दे दिया, लेकिन कैन आई फिट इनटू योर शूज? तब वो कहा द फेमस सेंटेंस दैट यू गेव अस मोहनदास करमचंद गांधी, वी गेव यू महात्मा गांधी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं स्मार्ट्स इतना दुखी था उस टाइम। ये जो स्टेटमेंट से पता चलेगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज माई फेट, इट वॉज माई फेट टू बी एंटागनिस्ट ऑफ ए मैन फॉर whom I had the greatest respect. A man for whom I had the greatest respect. I must frankly admit that his activities at that time were very trying to me. मतलब बहुत तंग किया, because he raised a troublesome issue, racism. He was the one who fought against racism. इसीलिए मेरे को उसको जेल में डालना पड़ा, लेकिन मेरे को पता था ये ऐसा एक इशू है जो पूरा दुनिया को, पूरा इंसानियत का, पूरा ह्यूमैनिटी को, पूरा ह्यूमैनिटी को ट्रबल दे रहा है। तो गांधी जी was the one who had the courage to raise this troublesome issue कि जब तक रेसिज्म चलेगा तब तक इंसानियत will be subject to all kinds of attack. तो इंसानियत और रेसिज्म ये दोनों एक साथ चल नहीं सकते। You have to give up racism to appreciate इंसानियत, और you have to give up इंसानियत to appreciate racism. तो स्मार्ट्स यही बात बताया कि गांधी जी ऐसा एक इंसान था जो इंसान कभी डरा नहीं, कभी डर के मुख बंद नहीं किया। On the contrary, he raised a troublesome issue of racism, which later on in South Africa, Nelson Mandela also appreciated in his autobiography a great deal. ये 1914 का बात कर रहा हूँ, 1914। इसका बाद मैं आ रहा हूँ 1918। 1918 में आपको पता है चंपारण मूवमेंट हुआ। 1918-19 में चंपारण हो रहा है। गांधी जी को जब आए थे हिंदुस्तान, गांधी जी किसका गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बताया, भाई आप तो अभी हिंदुस्तान में आए, आप पहले हिंदुस्तान को समझो। तो वो हिंदुस्तान घूमने चले गए 4 साल। उसका बाद चंपारण में एंटी इंडिगो प्लांटर्स एक कैंपेन चल रहा था। क्या इशू था? इशू था यही, बिकॉज इंडिगो प्लांटेशन वाज ए कमर्शियल प्रोडक्ट। उस टाइम रंग के लिए अभी तो सिंथेटिक रंग मिल गया, उस टाइम सिंथेटिक रंग नहीं था, सिंथेटिक कलर नहीं था। तो कलर करने के लिए इंडिगो वाज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और इंडिगो होने के लिए जगह था हिंदुस्तान।
स्पेशली बांग्ला बंगाल, बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट में इंडिगो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए चंपारण में जबरदस्ती किया गया अंग्रेज लोग, भाई आपका 2/3 ऑफ द लैंड में आपको इंडिगो प्लांट करना पड़ेगा और 1/3 आपका फसल, दूसरा फसल का। इसलिए क्या दुर्भिक्ष, भूखमरी शुरू हो गया। तब जो वहां उसका जरा खेती बाड़ी करते थे जो कल्टीवेटर्स, ये लोग थोड़ा अपोज करने लगा, तो कैंपेन चल रहा था। इस टाइम आपको पता है जे राजन शुक्ला, he was the one who brought गांधी जी to चंपारण। जिस दिन गांधी जी आने वाला था उस दिन का मैं कहानी आपको बता रहा था। ये कहानी किसने बोला? ये कहानी बोला उस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे चंपारण का, एक यंग सा आयरिश लड़का जिसका नाम था रॉबर्ट टेरेंस, बॉब टेरेंस। तो बॉब टेरेंस was a लड़का of 27 years old and he is an Irish guy। आयरिश गाय आप जानते हैं, आयरिश लोग नॉर्मली एंटी ब्रिटिश होता है। आज भी आप जानते हैं ये साउथ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका कैपिटल है डबलिन, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट। नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी भी पंगा चल रहा है। दे नेवर एक्सेप्टेड ब्रिटिश हेजिमनी। तो ये बंदा जो रॉबर्ट टेरेंस, बॉब टेरेंस, ही वाज अपॉइंटेड डीएम ऑफ चंपारण। तो उसको दिल्ली से खबर गया, भाई गांधी जी, उस टाइम कलकत्ता से खबर गया गांधी जी आ रहा है, आप थोड़ा स्टेशन में जाके देखो, थोड़ा कंट्रोल करो। तो ये बंदा कह रहा है भाई गांधी कौन है, कितना लोग आएंगे। तो पहुंचा वो पहुंचने के बाद देखा पूरा स्टेशन में इतना बंदा, he was really flabbergasted, he was really surprised कि ये कौन बंदा आ रहा है भाई, इसके लिए इतना लोग स्टेशन में आ गए। तो then he wanted to see that gentleman, but who is this gentleman who has attracted so many people from all over चंपारण, गांव से लोग आ गए देखने के लिए। तब रेलवे का काउंटर से निकाला गांधी जी, जो होता है गांधी जी के जाए, देन गांधी जी गए, बट he could not see गांधी जी। He was very upset। उसके बाद उसका ऑटोबायोग्राफी जो लिखा, मेमोइर्स जो अभी प्रिंटेड नहीं देखा, कैम्ब्रिज में इसको escaped, वहां पे वो लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल से आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई एम रियली क्वाइट अपसेट simply because I could not see the man who attracted so many people from so many villages। देखो कितना admission that here is a person, Gandhi ji, who is coming by train, and this gentleman, a young civil servant, an Irish guy, he wanted to see who is this gentleman भाई, जो इतना लोगों का ऐसे लगे, इतना magnetic personality किसका है। But he couldn't see, he was terribly upset। He said, I'm upset because I failed to see the person who attracted so many people from so many villages around Champaran। उसका बाद कहा, that's very interesting, but I could guess that to the masses he is a liberator। I could guess that to the masses he is a liberator, and by being a liberator he transfigures the imagination of the masses। ये जो सेंटेंस टू मी इज वेरी महत्वपूर्ण। देखिए एक आयरिश गाय जिसका कुछ अता पता नहीं है, एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कितना अहम था उसका, आप पूछो। आज का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो इतना एरोगेंट होता है, पूछो, आप जानते हैं, आप लोग का दोस्त तो आईएएस जरूर बना होगा। ये डीएम से मिलना ही मुश्किल होता है, ये डीएम सोचते हैं दूसरा प्लैनेट का बंदा है। और उस जमाने का बात कर रहा हूं मैं, 1918 का बात कर रहा हूं। फिर भी देखो डीएम एक्सप्रेस सरप्राइज, एंड डीएम ने ये कहा, जे लोगों में ये लगने लगा that here is a person who will be able to relieve the pain of the indigo cultivators because he transfigured their imagination।
चंपारण के बारे में एक गलत फहमी होता है हम लोग सबका, ज्यादा सब लोग. I don't know whether you are you know what had happened. You know, Champaran is the only satyagraha which is very distinct. इसका कई दूसरा सत्याग्रह से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि चंपारण is the only सत्याग्रह in the sense that गांधी जी क्या कहा, क्या किया गांधी जी आके. गांधी जी क्या कहा गांव वालों को, जो आप सब कोर्ट को पिटीशन जमा कर condemning the indigo planters. Total 818 petition जमा हुआ and Gandhi ji fought legally the case for the indigo cultivators on the basis of those 818 petition. वहां पे कोई धरना नहीं हुआ. So ये जो सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंट चैलेंज to the British authority by utilizing their system of arbitration. इसलिए मैं कहता हूं कि चंपारण सत्याग्रह is an exceptional satyagraha where Gandhi ji resorted to the mechanism which he refined in South Africa in case of Champaran, which is not true in case of Ahmedabad, in case of Kheda, in case of Bardalui. वहां पे सिट-इन धरना हुआ. तो 1918 वाला जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको लग रहा है कि गांधी जी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. इसका बाद मैं आऊंगा 1921. 1921 में लॉर्ड रेडिंग, जो स्टोरी मैंने पहले बताया था, जो कुर्सी में बैठ गया, चौकीदार बहुत डांटा. जब पता चला ये गांधी है, तब चौकीदार इतना दुखी हो गए, पैर पकड़ लिए. जो स्टोरी पहले बताया, अभी उसका आगे कहानी बताऊंगा. आगे तो गांधी जी रेडिंग का कमरा में बैठ गया, मैंने पहुंच गया, बैठा नहीं, पहुंच. वाइसरॉय का ऑफिस है भाई, बहुत बड़ा टेबल था. रेडिंग साहब अपने काम कुछ कर रहा था एंड डिडंट बॉदर टू लुक अप. अचानक देखा एक ऐसा दुबला पतला बंदा खड़ा हुआ. थोड़ा गुस्सा आया, भाई लाट साहब का कमरा में कैसे आ गया? कह रहा आप कौन हो? How come you got into my room office? Okay, sir, क्षमा करिए. I have an appointment with you. I am मोहनदास करमचंद गांधी. Then he said, okay, बैठिए बैठिए. बात किया. अभी बात जब हो गया, तब वो लिख रहा था. देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है. मैं कह रहा गांधी जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. कह रहा है जी ये बंदा को जब मैंने अगर बाहर देखता, he said if I saw him outside, I would have ignored him like any Indian, ordinary Indian. If I saw him outside, I would have ignored him like any ordinary Indian. But there is not something striking in his appearances, because when he talks, the impression is different. मतलब देखो आमने सामने जो खड़ा था बंदा, देखने में लगे तो कोई गांव वाला आ गए, बट गांव वाला आने के बाद भी ये रेडिंग साहब को लगा ये बंदा कुछ है इसमें. तो बिठाया. बिठाने के बाद बात जब किया, बात करने के बाद वो अपना ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है कि देयर इज समथिंग स्ट्राइकिंग इन हिज अपीयरेंस. होता है ना कई के बंदा को देख के आपको लगता है ये बंदा में कुछ है. ये प्रिंसिपल साहब कह सकते हैं, कई के स्टूडेंट को देखने लगता है ना स्टूडेंट में दम है. हम कहते हैं भाई ठीक ठाक क्या आपने इंटरव्यू में, बट आपका दम है, आप कुछ आगे कर पाओगे. जो टीचर कहते थे, सभी लोग कहते थे, आप लोग टीचर हो, आप भी कहते थे स्टूडेंट को ये भाई बंदा में दम है. तो लॉर्ड रेडिंग उसका भी लगा ये बंदा में दम है, और जब तक वो चुपचाप बैठा था तब तक उसको ये पता नहीं चला. बट द मोमेंट ही स्टार्ट टॉकिंग, ही सेड माय इंप्रेशन इज डिफरेंट. मतलब पूरा हिंदुस्तान को मैनेज करने के लिए ऐसा एक बंदा उसके सामने खड़ा था, गांधी जी, जो गांधी जी समझाया. एंड लॉर्ड रेडिंग वाज persuaded to accept some of his points and admitted that if I saw him outside, I would have ignored him as an ordinary Indian. But the moment he started talking,
my impression was different. So he realized it was not, he was not an ordinary person. He was something different. अभी मैं आऊंगा 1924. 1924 में गांधी जी बन गए. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया. हिंदुस्तान में ब्रिटिश को काफी सबक सिखा दिया. अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू करते पता नहीं क्या होता, क्योंकि आपको पता है गांधी जी खुद ही कहा कि विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ हिमालयन ब्लंडर. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने के बाद गांधी जी बिकेम अ ग्लोबल फेनोमेनन. और आपको पता है गांधी जी का बायोग्राफी 2 यूरोपियन पहले लिखा. एक यूरोपियन थे जो गांधी जी का खास दोस्त हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जॉन डोके. John Doke, D-O-K-E. John Doke wrote the first biography of Gandhi in 1910, when Gandhi was very much in South Africa. और second autobiography in Europe लिखा गया by Roma Rolla, the famous poet who was awarded Nobel Prize later in 1916, I think, 1916. He wrote a book on Mahatma Gandhi. Because by that time, Gandhiji was known as Mahatma Gandhi. रोमा रोला इन इस किताब लिख रहा है कि गांधी जी ऐसा क्या किया जिसके लिए हिंदुस्तान में इतना लोग जागरूक हो गए, जिसके लिए ब्रिटिश शासन मतलब total in trouble. British administration was in deep trouble. Gandhiji was the person who succeeded in mobilizing many people against the British Raj. ये बात क्या है, इसके बदला में है क्या? तो रोमाडोला बता रहे हैं जी. देखो रोमाडोला का बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह स्टेटमेंट आ रहा है. रोमाडोला was a devout Christian. He was a strong believer of New Testament. Now आप सवाल पूछ सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट क्यों नहीं? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में स्लेवरी जस्टिफाई किया गया. Romadola was one of the thinkers who was opposed to, not referred to slavery. Romadola rejected Old Testament and accepted New Testament. So on the basis of his understanding of New Testament, Romadola defined Gandhi. मतलब conceptual framework अगर सोचा जाए रोमाडोला का, it is essentially Christian ethics. Christian ethics as articulated by New Testament. So when he saw Gandhi, he visualized Gandhi, he conceptualized Gandhi in terms of his own what is called derivative knowledge. Derivative knowledge from New Testament. क्या कह रहा है? He कह रहा है this is the man who stirred 300 million people to revolt. उस टाइम 30 करोड़ था हिंदुस्तानी. 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिवोल्ट करने का मदद किया. Who has shaken the foundation of the British Empire? Who has shaken the foundation of British Empire? कैसे? यहीं पे आ गया Christian ethics. कैसे? Who has introduced into human politics the strongest religious impetus, of the last 2000 years. Strongest religious impetus क्या है? दो. First है infinite patience and second infinite love. देखो सत्याग्रह तैयार हो रहा है. अभी रोमाडोला का सोच में what we get is the definition of satyagraha which Gandhi would carry it forward. And this satyagraha का जो foundational pillar है, this pillar according to Romadola are based on Christian ethics, infinite patience and infinite love. गांधी जी यही कहते थे. जो गांधी जी derived it from Hinduism, from Jainism, from Christianity. Christianity का जो सर्वानंद माउंट
एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। ये जो सर्मन ऑन द माउंट का यही आइडिया था, इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट पेशेंस। तो देखो अभी तक सत्याग्रह के बारे में हम लोग का थोड़ा सा एयरी फेरी आइडिया था, वेग आइडिया था, बट रामानंद इज द पर्सन हु हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड Gandhian strategy as satyagraha, which comprises infinite love and infinite patience. अभी मैं आऊंगा 1948। 1948 में गांधी जी का देहांत हत्या हो गया। हत्या होने के बाद गांधी जी बारे में कौन लिख रहा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या लिख रहे थे? generations to come will scarce believe that such one as Gandhi walked the earth in flesh and blood. मतलब अगले जनरेशन विश्वास ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। एक नॉन वायलेंस वाला बंदा, ब्रिटिश माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कहते थे इसका सूरज कभी सेट नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है ब्रिटिश एम्पायर का। दिस ब्रिटिश एम्पायर का हिला दिया। कैसे? नॉन वायलेंस। कह रहे जनरेशन, अगले जनरेशन तो बिलीव ही नहीं करेंगे जैसा कोई इंसान था। उसका मतलब क्या है? देखो आइंस्टाइन साइंटिस्ट जैसा है, वो भी कह रहा है दैट गांधी जी का जो क्षमता, गांधी जी का जो कैपेबिलिटी ऑफ विनिंग हार्ट थ्रू नॉन वायलेंस, whether that is practical or not, it was proved by Gandhi ji. Yes, it was practical, it can be done, and over a period of time it got recognition. Abhi main aunga 1963. 1963, Martin Luther King, he came to India. Now इसके बारे में थोड़ा गलत फहमी है हम लोगों का। तो लोग कहते थे, सब लोग का ये आइडिया है शायद, मार्टिन लूथर किंग was deeply influenced by गांधी जी। मैंने इसके बारे में लिखा, मेरा किताब भी है, तो उसमें मैंने देखा this is not entirely correct, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो सिविल राइट्स में काम किया, जिसको बाद में 66 में हत्या हुआ, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर was a student of Morehouse College in Boston, and he is from Atlanta. Now Morehouse College में he worked on peace. Now if you look at his thesis, doctoral thesis, you'll find he defended peace not with reference to Gandhi ji. 54, Gandhi ji was no more. Hindustan Azadi mil gaye. So Gandhi ji was a global phenomenon. Yet when Martin Luther King Jr. defended peace, he did not refer to Gandhi ji's writings at all. He defended non-violence with reference to Christian ethics, mainly Sermon on the Mount and New Testament. But when he came to India, and before he came to India, he read about Gandhi. He had access to Gandhian literature, and पढ़ने के बाद उसको लगा, भाई मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ? इससे पहले तो महात्मा गांधी जी दिखा दिया दुनिया को कि नॉन वायलेंस जो सर्मन ऑन द माउंट का बात किया जीसस ने, वो तो ऑलरेडी ही एग्जीक्यूटेड दैट इनटू रियलिटी। तब वो क्या लिखा रहा है? कह रहे एज आई रेड, जब मैं गांधी जी को पढ़ना शुरू कर दिया, आई बिकेम डीपली फैसिनेटेड बाय हिज कैंपेन्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मैंने जब पढ़ने लगा, जस्ट बिफोर ही 63 ही केम टू इंडिया, उससे पहले जब पढ़ने लगा, तब कह रहे हैं भाई आई वाज फैसिनेटेड कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लेके आप एक एम्पायर को हटा सकते हैं, क्योंकि they were planning at that point of time, you remember वियतनाम वॉर शुरू हो गया, अमेरिकन्स were fighting for civil rights, and आप लोगों को पता है the अमेरिका कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट, बट उस टाइम ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं था, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन का वोटिंग राइट्स नहीं था। They got voting rights only in 1965 after the civil rights movement which came into success. 1965 में voting rights for the African Americans, Black Americans were recognized legally. So before 65, America में 12% of the blacks
did not have voting rights. तो अमेरिका जब कहता है डेमोक्रेटिक मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ये गलत बात है. इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इंडिया जब से हिंदुस्तान आजादी हुई, 50 कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ, तब से जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. एडल्ट सफरेज रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रिगार्डलेस ऑफ जॉब. मैंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो पढ़ता है, डेमोक्रेसी इसका जो सही मतलब ये हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. क्योंकि स्लेव का वोटिंग राइट्स नहीं था, वो आया उसका जो मतलब रिलीज आया 1893 में, और वोटिंग राइट्स फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन आया 1965 में. ठीक है. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसमें मदद किया, इसका जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल था मार्टिन लूथर किंग along with other people, and most of them were not political activists. Unlike Gandhiji's जो disciples, they are all political activists. They are not all religious babas. You can't say Nehru as Baba or Rajagopalachari as Baba, Maulana Azad as Baba, or G.B. Pant as Baba. यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस as Baba. But मार्टिन लूथर किंग के साथ जो लोग थे, everybody was priest. Everybody was priest. And ये priest का साथ गांधी जी का कनेक्शन था. From 1934 onwards, Howard Thurman करके एक priest था in Boston. And he had contact with Gandhiji, and he wanted Gandhiji to go to United States. And जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था in Britain 1932-33 में, then Howard Thurman came to London to take Gandhiji to Britain, sorry, to the United States, and Gandhiji declined. गांधी कह रहे देखिए आप लोग तो सब साहब सुबह, मार्टिन लूथर किंग का आपने ड्रेस जरूर देखा, और ये सूट टाई पहन के घूमते थे. अमेरिका में ब्लैक अफ्रीकन अगर बाल भी कटाने आए तो भी सूट टाई पहन के आते हैं. तो गांधी जी कहा भाई आप मेरे को ले जाओगे, लोग तो मेरे बारे में लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को देखा नहीं, देखने के बाद लोगों को विश्वास उतर जाएगा, ट्रस्ट उतर जाएगा. कह रहे ये तो भिखारी है, ये भिखारी हमारा आजाद कैसे दिलाएगी. तो इसीलिए गांधी जी पोलाइटली डिक्लाइन गोइंग टू द. गांधी जी कभी यूएस नहीं गए. तो एक बार ये मौका आया 1932-33 में, when गांधी जी was in London to attend the फर्स्ट में अटेंड किया, सेकंड अटेंड नहीं किया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए थे. तो इस टाइम वो कह रहा है, उसका बाद मार्टिन लूथर क्या कह रहा है, as I delved deeper into the philosophy of Gandhi, my skepticism concerning the power of love gradually diminished, and I came to see for the first time its potency in the area of social reform. देखो यहाँ पे ये इसको अगर आप समराइज करोगे और नहीं तो आप एनालाइज करोगे तो तीन हिस्सा मिलेगा यहाँ. ये तीन हिस्सा क्या क्या है. पहले बात है जे मार्टिन लूथर किंग now was trying to understand Gandhiji in its entirety. Who is Gandhiji? Gandhiji was a priest of non-violence. ठीक है, बट ये आया कैसे, ये जो नॉन वायलेंस के बारे में उसका जी इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस, ये आया कैसे. तब देखो गिवन इज क्रिश्चियन एथिक्स बैकग्राउंड, ही सेड क्या, पावर ऑफ लव. ये पावर ऑफ लव वो कभी सोचा ही नहीं. प्यार मोहब्बत इंसान को इतना चेंज कर सकता है. गांधी जी क्या कह रहे हैं भाई, फंडामेंटल पॉइंट क्या था, दैट यू विल परसुएड द एनिमी बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग इन यू. आपको पीट रहा है, आप सह रहो, आपको गाली दे रहा है, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो. उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यू आर इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग इन यू in response to your abuse, in response to your physical abuse, in response to your inhuman behavior. तो ये बंदा मार्टिन लूथर किंग जूनियर तब रियलाइज किया कि प्यार मोहब्बत कितना पावरफुल हो सकता है. ये गांधी जी ने दिखाया इन प्रैक्टिस. एंड प्यार मोहब्बत में जैसा इतना जो पावरफुल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, उसको हिला दिया. नॉट ओनली हिला दिया, उसको भगा दिया.
तो ये जो सेकंड 3 पोर्शन में मैंने जो मार्टिन लूथर किंग का बात बताया था, मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल प्रोपोजिशन टू अंडरस्टैंड गांधी नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग बट एज ए फेनोमेन। मेरा मकसद है गांधी इज ए फेनोमेन, गांधी इज नॉट ए इंसान, गांधी इज ए फेनोमेन, जिस फेनोमेन को कई लोग किसी तरह सोच रहा है, लेकिन जगह एक ही जगह है क्या, गांधी जी को जो मेथोडोलॉजी सत्याग्रह, ये हम कैसे समझेंगे, इसको गांधी जी कैसे अपनाया, ये जो सत्याग्रह का, हाउ डिड ही इंटरनलाइज द कैपेसिटी टू सफर, the capacity to suffer pain, and not only that, he also transmitted that to others. He transmitted to others. जैसा उसका आपको पता है, जो दांडी मार्च शुरू हुआ 1932 में, तब he had only 9 people, 9 of his disciples. ये 9 लोग जब दांडी पहुंचा 200 किलोमीटर पैदल जाने के बाद, तब देखा कई लाख लोग आ गए। तो उसका मतलब कुछ तो था। ऐसा क्या था? ऐसा था मेनली जो मार्टिन लूथर किंग के हिसाब से लव, प्यार मोहब्बत। ये प्यार मोहब्बत कोई पुरानी चीज नहीं है, ये प्यार मोहब्बत हर धर्म में दिखाया गया। Whether you talk of New Testament, whether you talk of Upanishad, whether you talk of Vedas, whether you talk of Quran, whether you talk of Tripitaka, whether you talk of Jatak, हर जगह में ये प्यार मोहब्बत is most important. And गांधी जी ये प्यार मोहब्बत का अपनाया एंड पॉलिटिक्स के साथ इसको मिला के एक वेपन तैयार किया, एक ऐसा एक वेपन तैयार किया, खतरनाक वेपन तैयार किया, जिसके बजाय ये जो एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जो माइटीएस्ट एम्पायर ऑफ द 20th सेंचुरी, वो भी हिल गया, नॉट ओनली हिल गया बट ऑल्सो भाग गया। इसके बाद मैं आऊंगा 1972, नेल्सन मैंडेला। नेल्सन मैंडेला के बारे में मैं आपको 2-3 वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग इसीलिए, देखिए हिंदुस्तान में जब नेल्सन मैंडेला छोड़ने के बाद हिंदुस्तान बुलाया उसको, एंड रवि को जरूर पता होगा, कलकत्ता में उसको फेलिसिटेट किया गया। उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे रूल करते थे, ज्योति बाबू खुद आके उसको फेलिसिटेट किया। बट इंटरेस्टिंगली नेल्सन मैंडेला को ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ोगे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, आप दोनों में अंतर देखोगे। क्या अंतर है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, he was appreciative of Gandhi because he wrote autobiography after having read Gandhian literature. But Nelson Mandela also read Gandhian literature. He also referred to Gandhi, but autobiography में गांधी जी का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मेरे को अजीब लगा, मेरे को पढ़ने के बाद अजीब लगा। तब मैंने जोहानिसबर्ग गए, जोहानिसबर्ग में गांधी आर्काइव्स है, तो गांधी आर्काइव्स में मैं ढूंढने लगा ये क्या बात है। फिर वहां पे रेसिज्म और सैमी मतलब साउथ अफ्रीकन लोगों को सैमी कहा जाता है उस टाइम, उसी नाम पे फाइल है। तो मेरे को अजीब सा लगा कि गांधी जी और कुली और सैमी के बारे में क्या संपर्क है, ये मैं मतलब दिमाग में था मेरा, नॉट दैट फाइल तब जानते हैं तो समंदर है, बट मैं ढूंढते ढूंढते कोई बंदा को वहां पे जो था काम करते, उसको पूछा मैंने ये क्या बात है। मंडेला साहब गांधी जी को बिल्कुल कुछ जिक्र नहीं किया, और जो कहते थे गांधी जी का नॉन वायलेंस के बजाय मैंने बोथा रिजीम से लड़ाई करके, ही वाज इन जेल फॉर 27 years, बट उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट बोथा रिजीम एंड दे बिकेम फ्री। तो ये क्या बात है? करते 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 मैं उस टाइम ऐसा ही न्यूज पेपर देख रहा था, डरबन टाइम्स, प्रिटोरिया टाइम्स, ये सब न्यूज पेपर मैंने पुराना न्यूज पेपर देख रहा था। अचानक देखते देखते अचानक मेरा दिमाग में आया गांधी जी का एक चिट्ठी। ये चिट्ठी लिखा गांधी जी 1912-13 इस बीच में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, हमारा किताब में मार्टिन लूथर किंग वाला किताब में ये है, इसका रेफरेंस है। तो मैंने उस चिट्ठी में लिखा कि गांधी जी का चिट्ठी डरबन टाइम्स पब्लिश कर रहा है। चिट्ठी का कंटेंट क्या है? कंटेंट यही है कि गांधी जी की जब जेल में रखा तब गांधी जी और सैमी और गांधी जी को एक ही साथ रख दिया। सैमी मतलब लोकल अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, काला साउथ अफ्रीकन,
और गांधी जी को एक ही जगह रखा। गांधी जी इसको खिलाफ थे। गांधी कह रहे भाई आई एम एजुकेटेड, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई एम एजुकेटेड फ्रॉम ब्रिटिश लिंकन हाउस, ब्रिटिश लिंकन हाउस में जहां पे सबसे बड़ा बैरिस्टर की डिग्री मिलता है, एंड आई फॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप मेरे को ये अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोगों के साथ आप रखोगे? तो गांधी जी डिडंट लाइक इट। तो गांधी जी जब ये चिट्ठी लिखा तब साउथ अफ्रीकन एलिट को ये एक वेपन मिल गया। देखो, हियर इज ए पर्सन हु इज ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और यही कह रहा है मैं रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो ये जो चिट्ठी, ये वो लोगों के पास एक स्ट्रेटेजिक वेपन मिल गया। तो चिट्ठी जब देखने के बाद मैं पुराना कुछ कागज ढूंढने लगा, तब उसमें प्रिटोरिया टाइम्स भी था। उसमें एक कागज देखे जब गांधी जी पहुंचा वहां पे 1893 में, पहुंचने के बाद गांधी जी देखा जी हर जगह में 3 कतार है। पहले कतार में जाएंगे व्हाइट लोग, सेकंड कतार में जाएंगे ब्राउन लोग मतलब इंडियन, एंड थर्ड कतार में जाएंगे सैमी लोकल अफ्रीकन्स। तो गांधी जी इसका खिलाफ उसी टाइम चिट्ठी लिखा टू द प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो सुप्रीम कोर्ट हो गया वहां पे। जी भाई ये क्या बात है, आप मेरे को कहते हैं वी आर एजुकेटेड, आई कैन स्पीक योर लैंग्वेज, वी आर ब्रिटिश सिटीजन, तो आप मेरे साथ व्हाइट को फर्क क्यों कर रहे हैं? ब्लैक का तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट ब्लैक, दे डोंट स्पीक माई लैंग्वेज, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, तो आप फर्क क्यों कर रहे हैं? इसलिए गांधी जी चिट्ठी लिखा, उसके बाद 2 कतार बन गया साउथ अफ्रीका में। वेदर यू गो टू ए रेस्टोरेंट देयर आर 2 लाइन्स, वेदर यू गो टू ए पोस्ट ऑफिस देयर आर 2 लाइन्स। तो गांधी जी वाज द वन हु instead of fighting racism actually supported racism since he was discriminated against the local Africans। ठीक है, तो ये चिट्ठी पढ़ने के बाद तब मैंने आई रियलाइज कि इसीलिए नेल्सन मंडेला ने गांधी जी को इतना तारीफ नहीं किया। तो गांधी जी वाज जस्ट लाइक एनी ऑफ द फिरंगी ऑफिसर्स। एंड आपको पता है रिसेंटली घाना में प्रणब बाबू जब गए थे, he donated one Gandhiji statue and that statue was installed in front of Ghana University। अभी वो स्टैचू हटा दिया गया because to them Gandhiji actually represented racism। ये सब कागज आ गया ऊपर। Anyway, we are not interested। मैं कहा कि गांधीजी at that point of time, I explained in my book saying that Gandhiji at that point of time nurtured the Enlightenment vices, and he, just like any liberals of the British Empire, expressed his resentment when he was clubbed with the local black Africans। इसका मतलब है एक स्ट्रेटेजिक डिस्टिंक्शन वो बनाना चाहते थे। इट वाज आल्सो अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से। यू कांट club me with those who are not as educated, who are not as civilized as you are। उसका मतलब जो ब्रिटिश तो मानते थे ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आया टू सिविलाइज द बारबेरियन इंडियंस। गांधी जी इसका हमें लगता है by making this kind of distinction, Gandhiji was trying to put forward his point of view that we are not barbarians at all, we are as civilized, as educated as you are। So probably in order to establish that particular point of view, Gandhiji wrote those letters which are now misinterpreted as having supported racism। This is my argument। Okay, now so Mandela का मैंने बताया, अभी Mandela क्या कहा? Still when he came to India, उसका बाद he wrote a book on Gandhi। He wrote a book entitled On Gandhi। ये किताब जब देखोगे तब आपको अजीब लगेगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे तारीफ ही तारीफ। तो इसका मतलब है जो मैं कहता हूँ ना, पॉलिटिशियन का कोई कैरेक्टर नहीं होता है। दे चेंज द कैरेक्टर
as the sun sets and the moment sun rises, they come up with different kind of character. So Mandela was also a politician, so was Gandhi ji. गांधी जी बाबा नहीं था कभी, गांधी जी वाज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। आप देखो सुभाष चंद्र बोस को कैसे हटाया 1939 में, आपको पता है किस तरह पॉलिटिकिंग करके सुभाष बोस वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। तो गांधी जी वाज ए I always address him as the smartest politician of the 20th century. गांधी जी कभी बाबा नहीं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, अंबेडकर का एक स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में on 25th November 1949. That's a perfect assessment of गांधी जी। वही कहा हिंदुस्तान का सबसे, जो मैं आपको थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं, अंबेडकर गांधी जी का हत्या हो गया। अंबेडकर इंसिस्टेड मैं गांधी जी को बॉडी देखना चाहता हूं। उस टाइम अंबेडकर एज यू नो वाज सफरिंग फ्रॉम हाई डायबिटीज एंड कलकत्ता, हमारा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे अंदर, विधानसभा का उल्टा एक है अंबेडकर मेमोरियल, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा जो अंबेडकर मेमोरियल। अब वो दैट वाज द प्लेस वेयर अंबेडकर यूज्ड टू स्टे, जहां पे अंबेडकर वाज स्टेइंग विद हिज सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता। ये सविता जी कहा भाई कि आप क्यों जाओगे, आपका तबीयत इतना खराब है, और गांधी जी का बॉडी रखा हुआ बिरला हाउस में, जो 30 जनवरी मार्च जिसको कहते हैं आजकल। अंबेडकर नहीं, मैं जाऊंगा। तो अंबेडकर चला गया। उस टाइम अंबेडकर वाज नॉट अंबेडकर, इज जस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। तो अंबेडकर वाज नॉट अलाउड टू सी गांधी's बॉडी। ही केम बैक वेरी अनहैप्पी। तो सविता जी पूछा क्या हुआ, कह रहे मैंने तो अंबेडकर गांधी जी की बॉडी नहीं देख पाया, बहुत दुखी था। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिस दिन गांधी जी का जलाया जाएगा बॉडी, तब जमुना में, तब अंबेडकर फिर जिद दिखाया बीबी को, जब मेरे को आज जाना है, मैं देखना चाहता हूँ द बॉडी इज पुट इन द फायर, बॉडी इज पुट ऑन द फायर। तो सविता जी को फिर अजीब सा लगा, ये क्या बात है भाई, महात्मा गांधी का देहांत हो गया, आप फिर जाना चाहते हो? कह रहे नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, मेरे को देखना है। पहुंचा, देखा जब बॉडी उसको चिता में डाल दिया, डालने के बाद जला दिया। जब जलना शुरू हो गया, ही केम बैक होम वेरी हैप्पी। मैडम चाय पिलाओ, मैं बहुत खुश हूं। सविता जी को और भी अजीब हो गया, क्या बात है भाई, एक इंसान का इतना, महात्मा गांधी को मार दिया गया और आप खुश हो इतना। तब क्या कहा देखिए, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज द पर्सन गांधी डाइड, आई एम हैप्पी बिकॉज Hindustan will be free from Babadom politics. Hindustan will be free from Babadom politics. You read that 25th November वाला speech, वही बात वहां पे अंबेडकर ने कहा। क्यों गांधी जी को वो इतना नापसंद करते थे? क्योंकि गांधी जी wanted to introduce Babadom politics, जो आज भी है। आपने देखा होगा, सब बाबा बन जाता है ना, सब बाबा बन जाते हैं। बाबाडम पॉलिटिक्स में एक ग्रेट मैन थियरी इम्प्लिसिट है, और जब भी ग्रेट मैन थियरी बनता है, ही बिकम्स डिक्टेटर। गांधी जी के बारे में कई क्रिटिसिज्म होता है, बट वो एक क्रिटिसिज्म है, गांधी जी कुड हैव सेव्ड पार्टीशन, बट इन ऑर्डर टू मेक नेहरू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही डिड नॉट एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्लान। वो तो अलग इतिहास है, वो तो अलग, मैंने पार्टीशन में इसमें कुछ काम किया। मैं आपको ये नेल्सन मैंडेला के पास आऊं। नेल्सन मैंडेला ने कहा उस किताब में, मैंने कहा ना पूरा उल्टा बात कर रहा है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात उठ के आया। फर्स्ट बात कहा that at that point, you remember the 80s 90s of the last century, क्या हो रहा था आपको देखो, हिंदुस्तान में नक्सलवादी मूवमेंट हो रहा है, चाइना में उससे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी हो ची मिन बैठ गया, नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग बैठ गया कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी बैठ गया, चारों तरफ कम्युनिस्ट का जय जयकार। तो मैंडेला ने कहा कि गांधी जी इज द ओनली पर्सन हु
opposed Marx by raising the issues of traditional wisdom based on Bible, Upanishad, Ved. So he said that Gandhiji is a person who could conceptually struggle with Marx, who influenced almost half of the world, but the rest of the world continues to remain different simply because it was Gandhiji who had shown us that it was possible. It was possible. How to contain Marx? Not Marx as an individual, Marx as an ideology. Because वो ideology फैल रहा था चारों तरफ. वो फैलने से गांधीजी रोक दिया by raising a point of view which is based on not on class struggle, not on class liquidation, not on class enmity, but on class reconciliation, but on class moderation, but on class understanding. So in case of Marx, it is battle, fight, liquidation, maro, खत्म करो. गांधी जी से नहीं, खत्म नहीं चलेगा. इसको अपना साथ अपनाओ, इसका अपनाओ. तो कह रहे मंडेला कह रहे देखिए गांधी जी का जो दिमाग कितना पावरफुल दिमाग है, जिस दिमाग ये मार्क्स का इतना बड़ा जो आइडियाज है उसको काउंटर करके एक नया आइडिया दे रहा है. जो आइडिया क्या है? जो आइडिया है इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ, नॉट मारो. और दूसरी बात कहा इकोनॉमिक्स में, ये मार्क्स क्या करे उस दौरान ये भी देखो, मशीन इज डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन. गांधी जी का प्रोडक्शन का खिलाफ नहीं था. गांधी जी अभी क्या हो रहा है, आपका मोबाइल फोन इतना सस्ता हो गया. किसको पता है आपको, जो मोबाइल फोन का जो लिथियम बैटरी होता है ये मिलता है दो ही जगह, एक है कॉन्गो, एक है साउथ सुडान. हर दिन कम से कम 1000 लोग मरता है क्योंकि उसमें जो लिथियम बैटरी का जो माइंस, ये माइंस कैप्चर करने के लिए वॉरलॉर्ड्स में लड़ाई होता है हर दिन साउथ सुडान और कॉन्गो में, और उसमें 1000 लोग मारा जाता है, कम से कम 1000, उससे ज्यादा. वहां से लिथियम बैटरी आता है. ये लिथियम बैटरी के बजाय मोबाइल इतना सस्ता हो गया. तो वी आर एंजॉयिंग मोबाइल एट ए चीपर रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड. तो ये बात मैं, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसीलिए कि मंडेला यही बताया कि आजकल क्या होता है, मास प्रोडक्शन करो, मास प्रोडक्शन करो. रोही इकोनॉमिक थ्योरी बताएंगे जो मास प्रोडक्शन करने से उसी हिसाब से काम हो जाएगा, काम ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा. बट गांधी जी क्या कहा? गांधी जी क्या, आई डोंट वांट मास प्रोडक्शन, आई वांट प्रोडक्शन बाय द मासेस. मतलब मास एम्प्लॉयमेंट इज जरूरी, मास एम्प्लॉयमेंट इज जरूरी. ये आजकल दुनिया में इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन लेट अस गो फॉर प्रोडक्शन बाय द मासेस. मंडेला कह रहे गांधी जी यही कहा. देखिए फ्रेंड, अभी तो 5:40 बज गया. अभी लगता है जो मैंने अभी तक बात कहा आपको, जो गांधी जी का बारे में सोचने के लिए हमें लगता है एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा, ये डिस्कोर्स होना चाहिए. बट आपको मैंने थोड़ा बहुत बिंदु बताया, मैंने एक बिंदु बताया. एक समंदर के बारे में हम लोग सोच रहे थे. समंदर तो मैं आपको 1 घंटा में नहीं दे पाऊंगा, ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हो गया. बच्चों भी, हम लोग के नंबर भी बहुत कम होते जा रहा है. मैं बच्चों को और बोर करना नहीं चाहता हूँ और प्रिंसिपल साहब को भी बोर करना नहीं चाहता हूँ. तो इसलिए मैंने आज ही पे मेरा विराम देता हूँ. मैंने आपको 1893 से 1972 तक मैंने एडीजी बनाया अपना सोच में. मैं बता रहा हूँ, मुझे ये सब सोच वाला बात कर रहा हूँ. मैंने ये नहीं कहा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा. मैंने कहा गांधी जी सोच का आधार पर हम अभी भी सोचते हैं कि गांधी जी कंटिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट इवन टुडे. इवन आज भी गांधी जी का पढ़ने का जरूरत है,
कि गांधी जी जो आइडियाज है वो आइडियाज आर वेरी रेलिवेंट सिंपली बिकॉज मैंने जो पहले बताया था कि गांधी जी इंसानियत के बारे में होता है। अभी लास्ट में खत्म करूंगा ये गांधी जी का बात पूरा सामरी करने के लिए मैं एक दो पंक्ति और आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ एक शेर से। वो है, जब मंदिर में पुजारी को रहीम नजर आएगा, जब मंदिर में पुजारी को रहीम नजर आएगा, जब मस्जिद में मुल्ला को राम नजर आएगा, जब मस्जिद में मुल्ला को राम नजर आएगा, दुनिया का सूरत बदल जाएगी, दुनिया का सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आएगा। दैट इज गांधी। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for that insightful speech. You explained the phenomenon called Gandhi and how he turned out from historical figure or historical Gandhi to civilizational Gandhi. Gandhi, who is civilizational, as you said, he brings in the principles of, Bible, Upanishad, and many other Indian texts. He embodies that ekam sat vipraha bahuda vadanti, that idea that we have enunciated in our philosophy. Thank you so much. And the abbreviation of Gandhi that you put is really insightful and new, which we never find from anywhere. Every time we have listened to you, and we have been fortunate and privileged enough to have you on many occasions and to guide us, you have brought in new insightful views and enlightened us on Gandhi and many other topics. Gandhi, as you abbreviated, gentle, accommodative, negotiator, diligent, humble, and inquisitive. Thank you so much, sir. Now, may I take privilege of inviting Professor Kusha Tiwari, ma'am, to say a few words on this occasion. Before this, I will just take a minute. So this, I could say the part 1. So may we be blessed to have the part 2 of this. So this series will go on, sir, with your due, engagements, keeping in mind your engagements and your other things, sir. अगर हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा इसका टाइम दे दें तो ये तभी ये रिसर्जेंट इंडिया का जो सीरीज यहाँ तक पहुँच सकता है, सर। तो आज पार्ट 1 हो गया सीताराम जी, तो आप लोगों के ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, सर का जब भी टाइम मिले। सर मैं भी यही बोलना चाहती हूँ सर को। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही मेरी, बट आई वुड आल्सो लाइक टू से द सेम कि सर इसको कंटिन्यू करें। अभी कम से कम पार्ट 2 और पार्ट 3 तक तो हम इसको लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि पार्ट 1 में तो एक तरीके से एक इंट्रोडक्टरी हमको वो मिल रहा है गांधीयन एंड रिसर्जेंस ऑफ गांधी का। जस्ट वी आर गेटिंग द इंट्रोडक्शन इन दैट कंटेक्स्ट, बट आई वुड लाइक कि सर अगर हमें टाइम दें तो हम इसको कंटिन्यू कराएंगे आगे, पार्ट 1, वो पार्ट 2, पार्ट 3 के कम से कम उसमें। और सर द बेस्ट पार्ट इज द पैशन। तो पैशन दिखता था आज सभी मेरे यंग टीचर्स जितना भी है अभी सभी इंस्पायर्ड है सर। तो आने वाले टाइम में तो इसका जो सीरीज कंटिन्यू होगा उससे शायद कोई पिक भी करे और आगे थोड़ा सा काम भी करे सर। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम रवि। मैं शामला तो मेरा घर है भाई। अच्छा सर, थैंक यू सर। प्रोफेसर उषा तिवारी मैडम। थैंक यू सर। सब लोग काफी कुछ बोल चुके हैं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि मुझे सुनने में बहुत मजा आया और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स जब आपको सुनते होंगे तो सिर्फ उन्हें मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ती होगी चीजें उसके बाद, बिकॉज इट वाज सो इंटरेस्टिंग इन a storytelling way that you told, all the historical developments, and a historical sweep that you covered and connected Gandhi with Jesus Christ, Sermon of Mount, to Martin Luther King and Nelson Mandela. So it was really, really wonderful, and of course, it shows how great a teacher you are. एंड कभी हमें तो खैर सौभाग्य नहीं मिला आपसे पढ़ने का, पर इस 1.5 घंटे में काफी मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर सीताराम कुंभार सर टू गिव वर्ड ऑफ थैंक्स ऑन दिस वेबिनार। तनुज कुछ पूछना चाहता है। विवेक
सनोज Yes, कुछ पूछना चाहता है, सनोज ने हाथ रेस किया हुआ, सनोज सर, हाँ सनोज सर को कुछ सवाल पूछने हैं शायद। सनोज सर पता प्लीज। नहीं हाथ रेस किया हुआ है। सर, सनोज सर आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ भाई सनोज, आपका कोई सवाल है बोलो। आप अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। सुमन जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हो गया बोलिए सर। थैंक यू सर। और मैं तो सर लेक्चर आपका बहुत सुना हूँ, और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ श्यामलाल में, और मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी पढ़ाता हूँ, और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहा आपका लेक्चर ये। बहुत सारी चीजें हमें भी जानकारी हुआ, क्योंकि हम लोग को मार्टिन लूथर जूनियर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। मेरा सर कुछ इसमें जस्ट एक आइडिया, क्योंकि अभी दिलीप मेनन सर से बात हो रही थी जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, तो जस्ट आपसे ही दोबारा मैं इस बात को सुना हूँ गांधी जी को लेकर के कि उनके जो स्टैचू हैं वो अफ्रीका से हटाए जा रहे हैं। तो जब इनसे बात हो रही थी, और एक और थिंकर हैं चंद्रभान प्रसाद, उनकी एक राइटिंग पढ़ा था उनके बारे में, गांधी जी के बारे में, जो इस तरह की एक्टिविटीज वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, तो शायद उन्होंने कोट किया था कि जो पूना पैक्ट, क्योंकि पूना पैक्ट के बाद एक नेशन वाइड नहीं वर्ल्ड लेवल पे गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ और जो डिस्प्यूट्स हुए, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में इसकी जानकारी है लोग, तो कहीं ना कहीं एक कास्ट सपोर्ट की बात निकल के आती है, गांधी करते थे। तो क्या कास्ट का जो सपोर्ट करना गांधी जी को, और वहां पे एक जो एक नोशन है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी एक तरह से स्लेवरी सिस्टम हो या तमाम तरह के जो भी एविल सिस्टम था, उनको उन्होंने इमेनिसिपेशन किया। तो कहीं ना कहीं एक जानकारी वर्ल्ड लेवल पे आ रही है कास्ट को लेकर के कि वो कास्ट के सपोर्टर थे, उसका भी कहीं इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जैसा कि आपने भी कुछ कोट किया जोहान्सबर्ग और लाइब्रेरी में कि गांधी जी कहीं ना कहीं रेसिज्म को एक तरह से 2-3 आपने एग्जाम्पल कोट किया। तो क्या कास्ट लेवल पे कहीं सर इस तरह का कोई रेफरेंस दिखाई देता है, मतलब आपने जब स्टडी किया तो? सेकंड मेरा सर सवाल ये है कि अभी आपने एक स्टोरी जो है वो बताया कि जब गांधी जी की हत्या की गई थी तो डॉक्टर अंबेडकर देखना चाहते थे उनको, और डॉक्टर अंबेडकर मिल नहीं पाए पहली बार। सेकंड बार वो उनसे मिले, और क्योंकि उन्होंने कहा, और बाद में बहुत सारे हिस्टोरियन ने भी गांधी जी के बारे में लिखा कि बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन थे। तो मेरा सर ये है कि ये जो आपने जो चीजें बताया, इसका कहाँ रेफरेंस है सर कि इस तरह से अंबेडकर जो है उनका रिएक्शन होता है, वो मैं जानना चाहता हूँ सर, प्लीज सोर्सेज के बारे में। ये पहले बात है सनोज जी, पहले जो कास्ट के बारे में जो बता रहे थे, मैं तो आज भी कास्ट इज वेरी रिलेवेंट। आपने देखा ओबीसी वाला बिल में कोई पार्टी का कोई लड़ाई नहीं हुआ, सब लोग आ गए, तभी ओबीसी बिल खत्म हुआ, सब निकल गए। और इसके बारे में मैंने डिटेल लिखा गांधी जी और अंबेडकर की जो लड़ाई में। मेरा किताब है सोशल पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, 2006 में पब्लिश हुआ। उसमें एक चैप्टर है, वो थोड़ा एक बार देख लो, उसमें आपको डिटेल मिलेगा गांधी जी कास्ट सपोर्ट क्यों किया एंड किस तरह किया, और अंबेडकर का क्या क्रिटिसिज्म वगैरह था। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी जो रेफरेंस का बात कर रहा है, मेरा एक नया किताब आया 2013 में, सेम टेक्स्ट सोशल पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ बी आर अम्बेडकर, ये रॉटलेज ने पब्लिश किया, हिंदुस्तान में इंडियन एडिशन भी आ गया। उसमें चैप्टर 5 में ये सविता जी का जो रिकलेक्शन, ये जो रेफरेंस मैंने जो आपको स्टोरी बताया, ये स्टोरी आई गॉट इट फ्रॉम सविता जी कलेक्शन। सविता जी वो उसका रेफरेंस है, उसका रेफरेंस है, डिटेल रेफरेंस आपको मिलेगा अगर आप तो ये दो किताब मतलब ये इन द पब्लिक डोमेन है, ये मेरा ये है नहीं, पब्लिक डोमेन में ये है। तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इसके बारे में और रिसर्च हो। और दूसरा, ये तो सविता जी का रेफरेंस, मैंने एग्जैक्ट रेफरेंस जो स्टोरी बताया, आई टोल्ड यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर ऑफ सविता जी। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया इसके बारे में, जो अम्बेडकर का गांधी जी के बारे में जो बाबा डाउन वाला जो आइडिया मैंने बताया, ये 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसमें जो लास्ट स्पीच अम्बेडकर ने दिया,
उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने स्पीच दिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया। तो ये स्पीच आप जरूर देख लो, उसमें आप यू विल रियलाइज, यू विल अंडरस्टैंड हाउ अंबेडकर फेल्ट अबाउट गांधी जी। और तीसरा मैं रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ, वो गूगल में आपको मिल जाएगा। अंबेडकर gave an interview to the BBC in 1955. इसको थोड़ा गूगल सर्च में अभी देख, तब पता चलेगा how Ambedkar viewed Gandhi. And he said, I saw fang in Gandhi. Fang मतलब जानते हैं, वो सांप जो डंक्स मारता है उसमें फैंग लगाता है ना, उसका जो जिसमें पॉइजन निकलता है उसको फैंग कहते हैं। And Ambedkar used the term fang. I saw fang in Gandhi. तो 1955 में बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया अंबेडकर ने, ये भी आप देख लो, ये भी सुन लो, गूगल सर्च में मिल जाएगा। अंबेडकर 1955 बीबीसी इंटरव्यू, आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा, आप ये सुन लो। तो इसी वक्त मैं इसमें देखो, रिसर्चर होने के नाते आपको पूजा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग पूजा करते हैं, गांधी पूजा होता है। 2 अक्टूबर राजघाट में आपको अंदर जाने का जगह नहीं मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान में चोरी डकैती बंद हुआ, हिंदुस्तान में हिंसा बंद हुआ। तो मैं यही कहता हूँ कि हिंदुस्तानी में पूजा करने का एक आदत होता है, पर पूजा का जब खत्म हो जाता है ना, तो अब हम सब भूल जाते हैं क्यों पूजा की। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, लिखने का टाइम भी इसका खिलाफ मैं लिखता हूँ, बोलने का टाइम। इसलिए कई लोग मेरा दोस्त जो है ओरिजिनल दोस्त होता है, दुश्मन ज्यादा है मैं। आप देखो गांधी जी 2 अक्टूबर में जो, पता नहीं आप लोग कभी गए कि ना, मैं तो कोशिश किया था जाने के लिए, अंदर जा ही नहीं पाया भाई। सब वीवीआईपी आता है, पूरा दिन भर चलता है, और उसका मतलब हिंदुस्तान में हिंसा चला गया। सबसे ज्यादा हिंसा हिंदुस्तान में होता है, चोरी डकैती बंद हो गया, गरीब के बारे में हम लोगों का जो अप्रोच चेंज हुआ। आज भी मेड जो काम करने आता है, तब मेड को कैसे कम तनख्वाह दिया जाता है, इसके लिए हम लोग आर्गू करते हैं। तो गांधी तो कहते हैं भाई सबको संभाल लो, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। कहाँ गए भाई? तो बोलने के लिए हम बोलते हैं, करने का टाइम करते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूजा वाला मोड, वर्शिप वाला मोड छोड़ के एनालिटिकल भावना चिंता करो। अंबेडकर इज अ ग्रेट माइंड। एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू कैन यू थिंक ऑफ अंबेडकर वाज फाइटिंग गांधी जी। एंड मैंने कहा 3 लोग गांधी जी को कभी गांधी जी कहा नहीं, मिस्टर गांधी कहते थे, अंबेडकर, सावरकर एंड जिन्ना। फिर भी वो लोग का असेसमेंट था, क्या क्या लिखा गांधी जी, व्हाट डिड गांधी जी डू, कांग्रेस डू टू द अनटचेबल्स। पढ़ के देखो तो पता चले क्या आइडियाज निकाला, मतलब काउंटर पॉइंट मैं ये कह रहा हूं। तो जब हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च जो होता है पूजा वाला मुद्दा आ जाता है, वर्शिप मोड। मैं इसका खिलाफ, एज ए रिसर्चर मैं एक पूजा वाला जो मोड है इसका खिलाफ। थैंक यू। आप तो फ्रोजन हो गए भाई सनोज, अब तो पता नहीं सुना कि नहीं मेरा बात। वो तो फ्रोजन हो गया भाई बिल्कुल। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू होगा। हाँ चला गया है शायद। कोई बात। ठीक है सर। सीताराम जी। सीताराम सर प्लीज गिव बोलो सीताराम, क्या बोलोगे भाई? आप तो क्लास में तो बहुत डांट खाया होगा। तो टाइम में नहीं जो आते थे, पता नहीं सीताराम उस पे था कि नहीं, जो टाइम में नहीं आते थे मैं उसको आने नहीं देता, बहुत गुस्सा करते थे ये लोग। हाँ सीताराम, यू आर नॉट वन ऑफ देम, आई नो, बट मैं कह रहा हूँ पता नहीं आप थे, कभी एक आध बार तो डांट पड़ा ही होगा। बोलो सीताराम। So, Honorable Professor Chakrabarty, Professor Kar, Dr. Nina Siris, Professor Kusatiwari, my host of the day, Vivekanand Nartam, all colleagues, participants, and our dear students. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks for today's event. My favorite, of course, and the honorable and respected speaker of the day, Professor
Chakrabarti is a great thinker of our time, no doubt. We learn a great deal whenever he comes and delivers his lecture. So I want to thank Professor Chakrabarti for sparing time from his busy schedule and enlightening us today. So I must say that, sir, it's always, a learning experience for all of us. And it's very enriching, particularly the way you put things in a very dialectical, ways, which is very, very accessible to our students. And I must mention here that you are one of the very popular, speakers among our students. And in fact, so many times our students actually raise demand to sort of invite you. So it's our honor to host you, sir. And we look forward, as our Honorable Principal said, we are looking forward to host you again in near future. And I would also like to thank you for agreeing to this. Spare time for this event in a short notice. Also, I would like to thank our principal for encouraging us to take academic initiatives. He is the source of inspiration for all of us to organize academic event. Similarly, we have our mentor in the department, Dr. Nina Siris. He takes care of the department, and he is also the convener of Gandhi Study Circle. So she is also a source of inspiration for organizing various events in our department and also in the Gandhi Study Circle. I also thank IQAC convener, Professor Kusa Tiwari, for facilitating such academic activities. Last but not the least, I would like to thank our participant through social sites also, and all the organizers of our department, all the colleagues of our college, and our dear students for making this program a very successful one. So I thank everyone for making this event a grand success. So thank you, everyone. We will stop here. Okay. Thank you, Ravi. Thanks a lot. Thank you, Vivekanand. Thank you, Madam Kushari. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Sitaram. Thank you, sir. And ठीक है, मिलेंगे. ये उम्मीद रख के मैं मिलूंगा फिर. ठीक है. Thank you, Nina. आप take care of your gala. सर सीजनल है बुखार और कुछ नहीं है, सीजनल है परेशानी थोड़ा सा. How is नीना को बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है. डिपार्टमेंट सब ठीक ठाक चल रहा है. हाँ ठीक चल रहा है. ठीक है. ओके नीना. जी. थैंक यू सर. थैंक यू. मेरा और एक मीटिंग है अभी. ठीक है सर. ठीक है, मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू. Thank you, sir. और विवेक